Hello friends, so in this video we will discuss about which stream is best after 10th class. So if you have confusion related to this topic, which stream is best for you, then this topic is based on this issue. So the best stream after 10th class depend on your interest, aptitude and career goals. So what are the streams? If I talk about, then you know very well in which science stream, commerce stream and art और humanity तीन स्ट्रीम होती हैं, जिनमें अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दीज सब्जेक्ट, देन यू शुड ऑप्ट साइंस. एंड एज वेल एज if you aspire for career in engineer line, medicine line, medical line or research or technology, then you should adopt science stream. So that's the basic concept of science. If you interested in this subject, if you want to become engineer or medical field, if you want to become doctor, then you should adopt science stream. If I talk about what is commerce stream, why commerce stream is good for you, then suitable for those who interested in business, finance and economics and entrepreneurship. If you interested in this subject, if you want to start your business or you want to become a manager in any company, then you should opt commerce stream. As well as if you want to become economist or you want to do work in commerce as well as in banking sector, then you should opt commerce stream. In this case, commerce stream best for you. If you want to do, if you interested in this subject, then definitely you should opt commerce stream. After that, if I talk about commerce के बाद जो art and humanity stream है, अगर उसकी बात करें, then if you have a passion for subject like literature, history, sociology, psychology or languages, if you interested in this subject, then definitely you should opt art or we can say humanity. So this stream can lead to career in field such as journalism, teaching, social work and art. If you want to work in this field, then definitely you should opt art as well as humanities. After that, if I talk about vocational courses, in which we can also say technical courses. So some students opt for vocational courses that provide specific skills. कहीं ना कहीं specific skills provide कराते हैं ये vocational courses, जिनको हम technical courses भी बोल सकते हैं, and training provide कराते हैं for particular profession such as IT field, hospitality sector हो गया, health care हो गया. So for that, if you interested in practical knowledge, if you take practical knowledge, then you should opt vocational as well as technical courses. ये कोर्सेज वो लोग करते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए कोर्सेज करने हैं, जिनको इंटरेस्टेड है प्रैक्टिकल नॉलेज रिसीव करनी है, जिसको वो ऑप्ट कर सकते हैं वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज. फ्यू कुछ मंथ के होते हैं, 6 महीने से 1 साल तक के कोर्सेज होते हैं वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज. तो चूज अ स्ट्रीम दैट अलाइन विद योर इंटरेस्ट एंड फ्यूचर करियर एस्पायरेशंस. इट इज एसेंशियल टू कंसीडर your strength and preferences to make an informed decision. For that, if I talk about what is science stream, then science stream after 10th class basically जिसमें इंक्लूड होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट इन विच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं साइंस स्ट्रीम में. एंड कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है वो डील करती है विद द स्टडी ऑफ matters, energy and fundamentals which forces that govern the universe. So topics include in physics, that is mechanism, and as well as thermodynamics, electromagnetism. ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं फिजिक्स में. After that, if I talk about in science stream, this subject chemistry,
केमिस्ट्री कहीं ना कहीं फोकस करता है कंपोजिशन पर, स्ट्रक्चर पर, प्रॉपर्टीज पर एंड चेंजेस ऑफ मैटर्स, क्या चेंजेस हो रहा है मैटर्स, एंड सब डिसिप्लिन्स विच इंक्लूड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री सॉरी, आफ्टर दैट एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं केमिस्ट्री में। आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज बायोलॉजी इन साइंस, सो बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ living organism, so living organism after that including their structure, living organism में कैसा स्ट्रक्चर है उस पर डिटेल में हम कहीं ना कहीं बायोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं एंड एवेल्युएशन कर रहे होते हैं, ग्रोथ के ऊपर क्लासिफाई कर रहे होते हैं, जिसमें सब डिसिप्लिन आ जाते हैं जो इंक्लूड करते हैं बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए एंड जेनेटिक्स के लिए। ये सब्जेक्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं हम बायोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। इफ़ यू इंटरेस्टेड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो देन यू शुड ऑप्ट साइंस स्ट्रीम इन बायोलॉजी। आफ्टर दैट व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स cover a range of topics, so after that we will talk about the subject of mathematics. Mathematics basically cover a range of topics such as algebra, geometry, calculus and statistics. बेसिकली ये कहीं ना कहीं क्रूशियल कंपोनेंट होते हैं साइंटिफिक रिलेटेड करियर जो होता है उसमें बनाना होता है, जिसमें कैलकुलस हम स्टडी कर रहे होते हैं, कैलकुलस के ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन पर हम काम कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स पर काम कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, ज्योमेट्री है, ये सब्जेक्ट जो ये टॉपिक जो है वो हम कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में कवर कर रहे होते हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ज़्यादातर मैथमेटिक्स में। एंड आफ्टर दैट इफ़ आई टॉक अबाउट student, then student in the science stream usually have the option to choose between mathematics and biology. कहीं ना कहीं या तो मैथमेटिक्स चूज करता है, साइंस विद मैथ, या फिर साइंस विद बायोलॉजी चूज कर सकता है कोई भी स्टूडेंट आफ्टर 10th। तो बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स दिस स्ट्रीम इज suitable for those who aim for career in engineering and other science related field. So that's why those who interested in these things, then they should opt science stream. If I talk about commerce stream, then commerce stream after 10th class focus, what are the focus, कौन से फोकस करते हैं, कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करा जाता है कॉमर्स स्ट्रीम में? सो बेसिकली रिलेटेड टू बिजनेस, कहीं ना कहीं जो कॉमर्स है वो बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इन पर ज़्यादा बात करता है कॉमर्स। सो कॉमर्स में कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट आ जाते हैं वो आ जाते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करती है रिकॉर्डिंग के लिए, क्लासीफाइंग के लिए, क्लासीफाई कैसे करना है, समराइज कैसे करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे हम मतलब मैनेज करना है, कैसे ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। तो इट इज़ इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्थ जो कैसी है बिजनेस की उस पर बात कर रहे होते हैं अकाउंटेंसी में, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ज़्यादातर अकाउंटेंसी में। आफ्टर दैट इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ इकोनॉमिक्स इन कॉमर्स, तो इकोनॉमिक्स कहीं के एग्जामाइन कर रहे होते हैं प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स के बारे में, एंड सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से कंज्यूम करी जा रही हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, इसके बारे में एग्जामाइन कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में। आफ्टर दैट कहीं ना कहीं ये इंक्लूड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। जो माइक्रो है वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहे होते हैं माइक्रो में, एंड मैक्रो होता है वो ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में। आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस स्टडी ऑल्सो कम्स अंडर कॉमर्स स्ट्रीम। तो बिजनेस स्टडी कहीं ना कहीं कवर करता है प्रिंसिपल्स के लिए, प्रैक्टिस हो रही होती है यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट की, एंड ये कहीं ना कहीं जो बिजनेस स्टडी है वो इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए, मार्केटिंग स्ट्रक्चर के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंक्लूड करता है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, एंड एंटरप्रीनियर के लिए भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है बिजनेस स्टडी। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रीनियर, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये कहीं ना कहीं डिटेल में डेप्थ में आपको स्टडी करनी पड़ती है अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है देन यू शुड ऑप्ट कॉमर्स स्ट्रीम। After that, mathematics also comes under commerce stream. Commerce students often have the option to choose mathematics as a subject in which providing a quantitative foundation of business and economics. कहीं ना कहीं जो बिजनेस की फाउंडेशन है इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव लेवल पर जो बात हो रही होती है तो वो मैथमेटिक्स में यहाँ पर कवर कर रहे होते हैं कॉमर्स
स्ट्रीम में मैथमेटिक्स इसलिए रखी गई है क्योंकि जो बिजनेस की न्यूमेरिकल पोर्शन है, ट्रांजैक्शंस हैं, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के जो फाउंडेशन है क्वांटिटेटिव लेवल पर, वो हम मैथमेटिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस और वी कैन से कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी स्टडी इन्वॉल्व होती है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ जाती हैं एंड प्रोग्रामिंग हो रही होती है, विच इज़ कहीं ना कहीं इंक्रीज करती है एंड इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस वर्ल्ड में। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा योगदान है, इसलिए कॉमर्स स्ट्रीम में कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है कॉमर्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स स्ट्रीम इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट हु इंटरेस्टेड इन परसुइंग करियर इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एंड बैंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं, ये सब्जेक्ट सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो एंटर करता है बिजनेस फील्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में। वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन उसका क्लियर हो जाता है बिजनेस से रिलेटेड ओवरऑल क्या है, एंड द बिजनेस वर्ल्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर जो होता है उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए जो भी इंटरेस्टेड होता है इस सेक्टर में जाने के लिए। सो परसुइंग हायर एजुकेशन इन कॉमर्स रिलेटेड फील्ड, इफ यू इंटरेस्टेड इन कॉमर्स देन यू शुड ऑप्ट कॉमर्स स्ट्रीम। आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज आर्ट और वी कैन से ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, तो आर्ट और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम आफ्टर 10th फोकस करती है कहीं ना कहीं लिटरेचर पर, सोशल साइंस पर, लैंग्वेज पर एंड आर्ट पर। तो हियर आर सम सब्जेक्ट विच इज कवर अंडर आर्ट स्ट्रीम इन विच लैंग्वेज आ जाती हैं, लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं इंक्लूड करती हैं स्टडी जिसमें आ जाती है एक से ज़्यादा लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं आर्ट स्ट्रीम में, जहाँ पर लिटरेचर होती है, ग्रामर एस्पेक्ट होते हैं एंड इंक्लूड करते हैं ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट लैंग्वेज के लिए, जिसमें हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं। ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज आपको आर्ट और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में पढ़ाई जाएंगी। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, जिसमें हम एग्जामाइन कर रहे होते हैं पास्ट इवेंट के लिए, सोसाइटी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे होते हैं, सिविलाइजेशंस कैसा है उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है ह्यूमन सोसाइटी का ओवरऑल, वो हम कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है वो हम उसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। इंडिया की हिस्ट्री क्या है वो हम इसमें ह्यूमैनिटी में स्टडी कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट जियोग्राफी, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जियोग्राफी। सो जियोग्राफी, इन जियोग्राफी we study the earth surface, yes friends, and physical features, climatic and the relationship between humans and their environment. So these topics we will study in geography. After that if I talk about next subject which is political science, also comes under ह्यूमैनिटी और वी कैन से आर्ट स्ट्रीम। सो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम एनालाइज कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एनालाइज कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे होते हैं पॉलिटिकल साइंस में। आफ्टर दैट वी नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं हम जो इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं कॉमर्स स्ट्रीम के ही तरह सिमिलर है। तो कहीं ना कहीं ये कवर करता है प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंजप्शन कैसे हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, यही सब्जेक्ट होते हैं सारे। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर होती है इकोनॉमिक्स, जो कॉमर्स स्ट्रीम में भी होती है, आर्ट स्ट्रीम में भी होती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ह्यूमन के बिहेवियर के लिए एंड कॉग्निटिव और इमोशनल जो बिहेवियर है वो कैसा है उसके बारे में हम एनालाइज कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। इनसाइड हम जानकारी जो है वो हम स्टडी कर रहे होते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, जिसमें इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे होते हैं, ग्रुप डायनामिक्स के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं साइकोलॉजी में। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें एग्जामाइन कर रहे होते हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। फोकस यहाँ पर जो करा जाता है वो होता है पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है सोसाइटी का, उसके बारे में स्टडी हो रही होती है सोशियोलॉजी में। आफ्टर दैट फिलोसफी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस इन विच व्हाट आर द क्वेश्चंस लाइक एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजंस, माइंड एंड लैंग्वेजेस। ये कहीं ना कहीं फिलोसफी सब्जेक्ट में कवर होते हैं ये सारे टॉपिक्स, जो आपको कहीं ना कहीं ये सारे जो हमने सब्जेक्ट की बात करी, ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपके लिए आर्ट और ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट स्ट्रीम है उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें मैंने बात करी थी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं आर्ट और ह्यूमैनिटी में, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। सो दीज सब्जेक्ट आर कवर अंडर साइंस ह्यूमैनिटी और आर्ट स्ट्रीम।
So basically art stream is suitable for students interested in pursuing career in fields such as literature, journalism, teaching, social work, as well as psychology, sociology, and the art stream. If they interested in these sectors, then definitely they should adopt art or humanity stream. So it provides a well-rounded education which emphasized critical thinking, communication skills and cultural understanding. So कहीं ना कहीं आपको ये सारे जो भी चीज़ें हैं वो आपको आर्ट स्ट्रीम में मिलेंगी. So if I talk about vocational courses, which is also called technical courses, so vocational or technical courses are educational program which focuses on providing specific skills and training for particular profession, or we can say or trade. So these courses are designed to prepare students for practical knowledge as well as hand-on work in a specific industry. So if I talk about what are the scope of vocational courses, then vocational courses कहीं ना कहीं cover करता है wide range of industries including information technology, healthcare, hospitality, automatic construction. So this type of चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आप vocational courses में स्टडी कर रहे होते हैं, इनके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे होते हैं. तो द गोल इज टू equip student with practical skills that directly apply to a specific job or trade. कहीं ना कहीं सेम टाइप की जो जॉब होती है वो आप प्रैक्टिकल वे में आप सीख रहे होते हैं. वोकेशनल कोर्सेज में ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं एक तरह से. तो ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर की बात करें अगर वोकेशनल कोर्सेज की, तो वोकेशनल कोर्सेज कैन वेरी इन ड्यूरेशन. रेंजिंग कहीं ना कहीं जो जाती है, रेंज जाती है वो कहीं ना कहीं कुछ मंथ हो सकती है या कपल ऑफ ईयर्स हो सकती है, जिसमें 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल. तो सम में लीड टू अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट. जैसे हम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं वो कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्स या फिर टेक्निकल कोर्स होते हैं. सो द स्ट्रक्चर ऑफन इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप. ये जो कोर्सेज ये जो चीज़ें आप अप्रेंटिस है, इंटर्नशिप है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये कहीं ना कहीं जो है वो वोकेशनल कोर्सेज या फिर हम कह सकते हैं टेक्निकल कोर्सेज हैं, इनमें आती है. आफ्टर दैट अगर हम एग्जांपल्स की बात करें वोकेशनल कोर्सेज की, तो जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, वेब डेवलपमेंट आ जाते हैं, नेटवर्किंग आ जाती है. हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में कहीं ना कहीं नर्सिंग आ जाती है, मेडिकल सेक्टर, मेडिकल लेबोरेटरी है या रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी है. तो ये कहीं ना कहीं जो है वो हेल्थ केयर में आ जाती है. हॉस्पिटलिटी की बात करें तो हॉस्पिटलिटी में कहीं ना कहीं होटल मैनेजमेंट हो गए, टूरिज्म हो गए. तो इस तरह से हॉस्पिटलिटी में आप सीख सकते हैं, उसमें जॉब कर सकते हैं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेकर. आफ्टर दैट ऑटोमेटिव, जिसमें ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ऑटो मैकेनिक्स, ये चीज़ें आती हैं ऑटोमेटिव में. कंस्ट्रक्शन में कारपेंट्री का काम हो गया, प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया. ये कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में अगर करना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आप सर्टिफिकेट गेन करके आप जॉब कर सकते हैं. इसलिए इनका वोकेशनल कोर्सेज का ये एग्जांपल्स थे जो हमने डिस्कस करे. तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयबिलिटी है वोकेशनल कोर्सेज की वो इस तरह से डिज़ाइन करी गई है कि जो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय वो इन्हेंस हो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी, एंड फोकसिंग रहता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल्स पर फोकस रहता है ज़्यादातर. उसी के बारे में ओवरऑल चीज़ें सिखाई जाती है. पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उसी के बारे में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. तो ग्रेजुएट आर ऑफन वेल प्रिपेयर्ड टू एंटर द वर्क फोर्स डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग. कहीं ना कहीं जो ग्रेजुएट होते हैं वो भी आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन दे गेट इंटर्नशिप, दे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन. जब भी कोई जॉब पे जाता है तो इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप कराई जाती है, तो उसके बाद ही परमानेंट होते हैं लोग. तो ये ओवरऑल हमने बात करी वोकेशनल और भी कैन से टेक्निकल कोर्सेज की, जिसमें कॉमर्स स्ट्रीम का क्या रोल है, साइंस स्ट्रीम का क्या रोल है, ह्यूमैनिटी कोर्सेज जो स्ट्रीम है उसका क्या रोल है. तो इसके बारे में आई होप आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट then definitely you can ask from comment box so that I can reply your question. That's all in this video. If you like this, then don't forget to subscribe our channel. Stay tuned with us. Take care of yourself. Thank you. धन्यवाद.